Okay, students, are you ready for the test? Today is your test now. Atharv, Ayush, Kanish, Parth. Okay, the students. Synthetic fibers and plastic. नाइट्रोजन फिक्सेशन कल पढ़ा था सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Two types of nitrogen fixation क्या होती है? What are the two types of nitrogen fixation? What is nitrogen fixation? Yes, Yamni. मैम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं. And there are two types of nitrogen fixation: atmospheric fixation and Yes, it's biological fixation. Okay, and what is a biological fixation? Ma'am, biological fixation, ma'am, as named, the biological fixation means that the nitrogen fixation is done by any living organism, and that is cyanobacteria and other nitrogen fixation bacteria. Okay. And atmospheric नाइट्रोजन, मैम एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का प्रोसेस होता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे लाइटनिंग और रेन के द्वारा वो नीचे आती है. पहले वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, फिर वो नाइट्राइट्स में होती है, फिर वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है. Okay. And in biological nitrogen fixation? Ma'am, in biological nitrogen fixation, ma'am, the nitrogen is fixed by bacteria, blue-green algae, that is also called cyanobacteria. And convert it into? In which Ma'am, type ammonia and other compounds. Ammonia and other compounds. Okay, good. So Yamni, your first question is, explain the structure of synthetic fiber. Explain the structure of synthetic fiber. Ma'am, synthetic fibers are made of polymers. Ma'am, they are long chains. They are long chains consisting of many small units that are called monomers, and these units can be linked in a linear form or a cross-linked. Ma'am, that made a straight chain or cross-linked chain. That made a synthetic fiber. Yes, cross-linked polymers and straight chain polymers. Okay, good, Yamni. Excellent. Yes, Vanshika. Yes, ma'am. Which fiber is also known as artificial wool? Mention Yes, any three uses of this fiber. Yes, ma'am. Acrylic is known as artificial wool. The uses are: it is used to make knitwear like sweater caps, socks, etc. It is also used in home furnishing items such as carpets, curtains, etc. Okay, good. Very good, Vanshika. Yes, Kanish 2333. Kanish 2333. On your mic, bache. Kanish, your question is, what is the difference between the thermoplastics and thermostatic plastics? Thermoplastic can be heated again to the. बाकी स्टूडेंट्स रफ नोटबुक में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे. राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक. And What is set
Ma'am, can we access in chat box? No, only in your rough notebook. Yes, Tanish, And carry on. in a new shape, some of the example are polythene, CVC plus plaster. कनिष्क, आप रीड करके बोल रहे हो? रीड करके बोल रहे हो? आता है टेस्ट? कनिष्क, टेस्ट आता है कि नहीं आता? कनिष्क, टेस्ट आता है कि नहीं आता? टाइम नहीं वेस्ट करना है। आपको टेस्ट आता है कि नहीं आता है? यस अथर, 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 ऑन योर माइक अथर। अगर टेस्ट नहीं देना तो आप क्लास से जा सकते। डेली का डेली ये नहीं चलेगा, एक्सक्यूजेस नहीं चलने हैं। कैमरा ऑफ कर दिया। कनिष्क, आपको टेस्ट आता है कि नहीं आता है? कहाँ है आपकी मम्मा? कहाँ है? वेयर इज योर मम्मा? कनिष्क, मम्मा कहाँ है बच्ची आपकी? कैमरा, अच्छा माइक ऑफ कर दिया ना? आप पहले अपनी मम्मा से बात करना, फिर एंटर होना क्लास। मैं नहीं ऐसे एंटर करने दूंगी। डेली का 0 मार्क आ रहा है डेली। यस, समर, समर कुमार 3265. समर कुमार, are you present? Yes, ma'am. okay. What is the difference between thermoplastics and thermosetting plastics? टेक्स्ट प्रिपेयर किया है बच्चे? No, ma'am. Why no, ma'am? यस अभिमन्यु, अभी के अभी लर्न करो, मैं अभी के अभी सुनूंगी। यस, नेक्स्ट इज अभिमन्यु, अभिमन्यु, पार्श, अभिमन्यु, अथर्व, समर कुमार, पार्श। बच्चे कैमरा ऑन करें, अदरवाइज आई विल डिसमिस यू फ्रॉम द क्लास। मैं रिमूव करूंगी क्लास से। कैमरा ऑन रखेंगे सभी। तुम्हें टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है, नहीं करना है, पढ़ना है डेली। फिर मैं रेडी करवाऊं, यही चलना है? यश अक्षित चौधरी, अक्षित चौधरी, Yes, ma'am. टेस्ट आता है? लेफ्ट ही होंगे अभी। अभिमन्यु, अथर, टेस्ट आता है बच्चे? पार्थ, आयुष 3136, आयुष 3136, ऑन करो, माइक ऑन करो अपना। Yes, ma'am. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? क्या डिफरेंस है? थर्मोप्लास्टिक्स किसके बोलते हैं हम? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में किससे बोलते हैं? Thermosetting are that plastic which can heated one time, then we cannot change their shape. For example, pan, fridge, and
switchboard, and etc. फिर से रिपीट करो बच्चे, क्या एग्जांपल्स बताए आपने? रिपीट करें फिर से, रिपीट इट अगेन. Yes, ma'am. Thermoplastics are those plastics. Thermoplastics are the, ma'am, I am saying of thermosettings first. Okay, thermosetting plastics are those plastics. Thermosetting plastics are those plastics that can heat it one time and we cannot heat again, and it cannot change its shape. Yes, they cannot change their shape. Yes, good. For An example. Switchboard, pan handles, and Yes, pans handles. Okay, the pans handles are made up of which type of plastics? It's thermoplastics or thermosetting plastics? thermosetting. Okay, and the name of this type of thermosetting plastic is bakelite. Is it bakelite? Is it bakelite or melamine? Melamine. Melamine, bakelite. Melamine के बच्चे क्रॉकरीज बनती है. आप क्रॉकरीज होती है ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज होती है. देखिए क्रॉकरीज होती है ना व्हाइट कलर की, डिफरेंट कलर की भी होती है, अनब्रेकेबल. अगर आप ऊपर से इसको नीचे फेंकोगे तो वो टूटती नहीं है. ठीक है. ओके, एंड thermoplastics. Yes. Now come to Thermoplastics the are that type of plastics that we can heat again and again and shape their, we can change their shapes yes. at every time. For example, plastic poly bags and plastic bottles and Polythenes. polythenes Yes, and yes. etc. Yes. Good, good, Ayush. Good, बच्चे. Where are other students? टेस्ट के नाम से ही गायब हो जाते हैं वो. टेस्ट के नाम से ही गायब हो जाते हैं. Yes, ma'am. अच्छा, मतलब नहीं देना, जस्ट पास ही लगानी. उनका 0 मार्क एंटर हो रहा है, उनको बता देना कि 0 मार्क लग रहा है. फिर जो आपके फर्स्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको फाइनल एग्जामिनेशन में शो होगा. मत दो डेली टेस्ट. आप जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं ना, इसमें रिकॉर्डेड हो रहा है सब कुछ. ऐसे मत सोचना कि उनका कुछ हार्म नहीं हो रहा. मार्क्स काटूंगी मैं, डिडक्ट करूंगी मार्क्स. करो लेफ्ट आप, जिसने लेफ्ट करना है. ओके, नेक्स्ट इज पार्थ. बच्चे अपना माइक ऑन करें और कैमरा भी ऑन करें. पार्थ, बस नेम अनाउंस करने से ही एग्जिट कर जा रही. मत करो टेस्ट, ठीक है? मत करो, नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो. ओके, नेक्स्ट इज एमोनिफिकेशन. स्टार्ट करें. एमोनिफिकेशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले कल के लिए टेस्ट लिख लो आप. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, ये चैप्टर करके आना है आप. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले, ताकि आपकी रिवीजन इजली हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं कर रहे. ओके, फर्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. ओपन योर ऑब्जर्वेशन बुक of chemistry. Everyone, open it. First is fill in the blanks. Yes, Vanshika, read it. Yes, ma'am. Non-metals are generally soft, but dash is an exception. Diamond. Exception.
नॉन मेटल्स, यस नॉन मेटल्स मैंने बोला था सब में एक एक्सेप्शनल केस आएगा ही आएगा। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना सबकी, सब में किसी ना किसी में एक्सेप्शनल केस था। ठीक है, हमने बोला था कि मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, बट आपकी मरकरी, हमने मरकरी की बात की थी, वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है आपको एट रूम टेम्परेचर। बट नॉन मेटल्स की बात करें तो वो जनरली कैसी होती है, हमेशा मेटल्स की प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से ऑपोजिट्स होंगी। ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस होगा। एक्सेप्शनल केस मतलब है तो उसी कैटेगरी में, पर वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स के होते हैं सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड जो है आपका नॉन मेटल है, बट इट इज हार्ड। ठीक है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। नेक्स्ट, यामिनी नेक्स्ट रीड करे बच्चा। Yes, ma'am. Dash is a metal but is a liquid at room temperature, mercury. डैश इज अ मेटल बट इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी मैंने बताया कौन सी मेटल है। मेटल्स जो होती जनरली हार्ड होती है, बट एक्सेप्शनल केस किसमें बताता है, अभी बताया मैंने, दैट इज मर्क्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज, यस आयुष, कहाँ थे बच्चे आप पहले? यस मैम। कहाँ थे पहले आप, टेस्ट के टाइम भी कहाँ थे? अब मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जा रही है। एक्सक्यूजेस आएंगे अभी। ओके, नेक्स्ट रीड करो, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? आयुष, आप है आपके पास ऑब्जर्वेशन बुक है? आयुष, आयुष यस मैम। present? हाँ, रीड करो बच्चे। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। Yes, ma'am. The reaction of copper with air produce copper hydroxide and dash copper Yes, carbonate. the reaction of copper produces copper hydroxide and copper carbonate. ठीक है, ग्रीन इन कलर हो जाता है ना, फिर हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस रिदम रिदम रिदम। आयुष, आर यू नॉट फीलिंग वेल? व्हाट हैपेंड बच्चे? मैम बीच में ऐसे खांसी हो क्या हुआ? मैम बीच में ऐसे खांसी हो जाती है तो अच्छा, ओके, फीवर तो नहीं है नो ना? मैम। ऐसे लग रहा है डाउन सी शक्ल लग रही है आपकी, फेस भी डाउन सा लग रहा है। पानी पी लो, ठीक है, ल्यूकवार्म वाटर पिया करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो। ठीक है, साथ में यस बॉटल रखा मैम। करो। ओके, रिदम यस मैम। रिदम रिदम। कोई रिस्पॉन्स नहीं करना तो क्लास से एग्जिट कर सकते हो। यस रोहित, रोहित रोहित यस दीपांश, अनन्या डोगरा, कैमरा ऑन करेंगे अपना। अनन्या डोगरा, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, ma'am. मैम यस अनन्या डोगरा, नेक्स्ट फिल द ब्लैंक रीड करेंगे बच्चे। Yes, ma'am. Metals and non observations, metals and non-metals. Read करो। Which page number? Observation book. Your observation book. Chapter is materials, metals and non-metals. D part. ने पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों बैठे हो क्लास लगाने?
क्यों मैं इतनी मेहनत से तुम्हें एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी यही हाल है, यही हाल बना के रखा हुआ है ना। रिदम अपना कैमरा ऑन करो। जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है मैं क्लास रिमूव कर रही हूँ, 5 डेज के लिए मैं क्लास में नहीं एंटर होने दूंगी। रिदम समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Okay, next is the reaction of dash oxide with water produce acid. हमने मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस बनाते हैं, बट जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, वो आपके प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे आएगा योर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। याद रखना, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, next fill in the blanks is dash in the dash reaction iron displaces copper from the copper sulfate solution। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं जिसमें डिस्प्लेस करता है? मैम डिस्प्लेसमेंट It's a रिएक्शन। मैम नेम से ही नेम से इस रिएक्शन का नेम पड़ा हुआ है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या कर रहा है, आपका जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। सॉल्यूशन डालते थे ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल डिप करके रखते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि चैप्टर फिर से रीड करवाना पड़ेगा? ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? किस मैटर को हम मैलिएबल बोलेंगे, मैलिएबल बोलेंगे? जिसकी थिन शीट्स बनती है, थिन शीट्स बनती है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? अ मटेरियल इज कॉल्ड मैलिएबल इफ इट फ्लैटन्स इनटू अ थिन शीट ऑन बीटिंग। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स है आपकी वो मैलिएबिलिटी शो करती, नॉन मेटल्स नहीं करती। ठीक है, नॉन मेटल्स नहीं करेंगी, वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। हमने कहा ना नॉन मेटल्स का, बुक निकालो, ऐसी शक्लें देख लो जैसे पढ़ा ही नहीं है। पेज नंबर 139, मैलिएबिलिटी। अगर हमने एक आयरन की शीट ली हुई है, उसको हम बार बार उसको बीटन करते, उसको बीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम मैलिएबल बोलते हैं, दैट इज अ मैलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में वायर्स बनती हैं, मैलिएबल में शीट्स बनती हैं, डक्टिलिटी में वायर्स बनती है, थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस उसमें जो आपका मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वायर्स, that is the ductility, it's a property of a metal। okay, next is sonorous। sonorous क्या होते हैं, what are sonorous? ये भी प्रॉपर्टी है मेटल to make big white thing। तो ये क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर उसको हम किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड। ठीक है, जो आपकी स्कूल बेल होती है, ठीक है, तो दैट इज जब हम किसी हार्ड मटेरियल को स्ट्रक करते हैं तो टन टन की आवाज आती है कि नहीं आती है? आती है। तो दैट इज स्नोरस से याद रखना, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मिनरल्स? तो मिनरल्स आर द नेचुरल अक्रिंग फॉर्म
किसकी? मेटल्स की, जो किसमें? अर्थ में प्रेजेंट होता है बट इन कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। So the natural occurring forms in which the metals are present on the earth are called minerals. Next is ores. यहीं पे लर्न करने की कोशिश किया, ठीक है, यहीं पे लर्न, ताकि आप एक बार रिवाइज करो, ये पहले भी चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक जस्ट एक रीड करो तो आपको क्लियर हो जाए, जस्ट अ रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी ऑब्टेन। मिनरल्स होंगे, उसमें से हम एक मेटल को सेपरेट कर लेंगे ओर में से, ठीक है। नेक्स्ट इज नोबल गैसेस। Gases that have very little tendency to participate in a chemical reactions. ये नोबल गैसेस जो होती हैं बहुत कम रिएक्ट करती हैं, किसी के साथ रिएक्शंस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। लिटिल टेंडेंसी होती है, केमिकल रिएक्शन शो करती हैं, मिक्सअप नहीं हो पाती हैं, उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस ऑफ मेटल्स, yes, Vanshika, what are the uses of the metals? Yes, ma'am. Ma'am, uses of metals, कोई भी uses बता दो metals की। यूटेंसिल्स यूज करते हो कुकिंग के लिए, ज्वेलरी पहनते हो आप, किसकी बनी है? मेटल की बनी है। यस अनन्या, आप बताइए मेटल की यूजेस बताइए। अनन्या। यस मैम। यूजेस बताओ बच्चे मेटल्स के। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, माइक ऑफ करके नहीं सुनाई देगा। हम शेड। शेड, शेड व्हाट टाइप ऑफ शेड? जिसमें हम काऊ को रखते हैं। यस मैम। वो मेटल का बना होता है मैम, ऊपर से जो रूफ होती है। यस, शीट, मेटल शीट्स, टीन शीट्स, ओके। एंड और मैम बैटरीज। बैटरीज में मेटल्स यूज होती हैं। एंड वायर्स, कॉपर की वायर्स बनती हैं। कॉपर इज यूज्ड इन मेकिंग द वायर्स। लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ मेटल्स। यूटेंसिल्स। यस। व्हाट आर द यूजेस ऑफ द नॉन मेटल्स? यस यामिनी, नॉन मेटल्स की यूजेस बताइए। Ma'am, nitrogen is majorly used in making fertilizers and phosphorus. में एक Yes, जस्ट मिनट यामिनी, हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है। उससे नाइट्रोजन से क्या करते हैं? एमिनो एसिड बनते, प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन्स वाला तो फर्टिलाइजर एज ए इंडस्ट्रियल आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है, ठीक है। पढ़ा था हमने, इसमें एमोनिया बनाते हैं, नाइट्रेट्स बनाते हैं। यस और नो? yes, ठीक है। यस मैम। तो ये आ गया, नाइट्रोजन यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, fertilizer industry, and phosphorus is also used in making fertilizers, matchbox, etc. And chlorine is used as a bleaching agent and as a disinfectant. and a disinfectant. And the hydrogen is used in making of acids, fuel cells, ammonia. Okay. Next is, what is the difference between the physical and the chemical properties? Physical and chemical properties में क्या difference होता है? क्या बताया था? Ma'am, in the physical change, ma'am, only the physical body of the change, and there is no change in the, ma'am, Yes. there is Physical
फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स सच एज द शेप, साइज, ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है। इन फिजिकल रिएक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है, दैट इज अ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस कभी फॉर्म नहीं होता है, बट इन केमिकल रिएक्शन ऑलवेज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट। अपने रिएक्टेंट से वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं कि मैलिएबिलिटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने क्या बताया था फिजिकल मैम बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मैम जैसे हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करें तो वो मेटल का मेटल ही रह रहा है, कोई और कुछ नहीं बन रहा है। मेटल का मेटल ही रह रहा है, बट उसको हम क्या, फिजिकल मीन्स इज अ बॉडी रिलेटेड टू अ बॉडी कॉन्टैक्ट या बॉडी से रिलेटेड। मतलब जो चीज अपनी आई से देखी जाती है, सामने हम देख सकते हैं, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती है, जो हम अपनी आई से ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। जैसे अभी अनन्या डोगरा बैठा हुआ है चेयर पे, तो ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख पा रहे हैं। बट दे साथ में उसकी क्या है, मतलब जैसे इसने वियर किया है रेड टी शर्ट, तो जो हमने अपनी आईज से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस। ओके, नेक्स्ट इज हार्डनेस। हार्डनेस कौन से वाली वंशिका किसमें आएगी? केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। Yes, it's a physical property. Okay, next is reaction with oxygen. Ayush, it is a physical or chemical property? What type of property is it? Chemical. It is. It is? Chemical. बच्चे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Ma'am, Yes, chemical Ananya property. Dogra. Chemical property. Okay. And reaction with acids. Yes, Ananya Dogra. Physical or chemical? केमिकल। What? केमिकल। It's a chemical property. Okay. Melting point. Melting point comes under in which category? Physical property or chemical property? फिजिकल। Yes, physical. Physical. Yes, कैसे physical? क्योंकि melting point में कौन कितने टेम्परेचर पे कोई चीज मेल्ट हो रही है, किस पॉइंट पे आके, किस टेम्परेचर पे आके कोई चीज मेल्ट हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीटली मेल्ट हो रही है, उसको हम चेक कर सकते हैं ना। यस और नो? कर रहे हैं ना, टेम्परेचर थर्मामीटर से उसको चेक तो कर रहे हैं, यस वो मैम। मेल्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। मैम केमिकल प्रॉपर्टी। Ma'am, chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स कल ये चैप्टर आपने लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ना ढंग से लर्न करो, कोई फायदा नहीं ऐसे लर्न करने का। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? डेली का अगर इस तरह से लर्न करोगे तो नहीं, क्या फायदा पढ़ने का। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ, ये एक रिएक्शन है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उसमें आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन है
Okay. Explain whether the following chemical reactions will take place or not. किसमें chemical reactions हो रही हैं? If there will be any reaction, the name of the products तो क्या बन रहा है? First देखो हमारे पास क्या है? That is a iron. ठीक है? Plus copper sulfate. ठीक है? तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? इसमें हमारा क्या बनता है? ये जो हमारा आयरन वाला ब्लैक बोर्ड शो हो रहा है, व्हाइट बोर्ड सबको, यस और नो? Yes. मैम श्योर। तो क्या होगा इसमें? देखो आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमारे पास आयरन सल्फेट बन रहा है, ठीक है? और प्लस हमारा कॉपर वैसे का वैसा ही रह जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर एंड लेड सल्फेट के साथ रिएक्शन है। अब जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? दैट इज अ कॉपर प्लस लेड